Hello students, welcome back to my channel. Lecture part 3, Unit 1, Product. Marketing Management 201 as per the syllabus of Savitribai Phule Pune University. Here points covered will be product levels, in that product hierarchy, product systems, mixes, product line analysis, length, customer value hierarchy. Now we will see one by one. Product hierarchy starts with need family, means it starts with the need, then product family, then product class, product line, product type, and individual product. The exact product which is having the specifications or particular product, it will end with the particular product, while when it starts with a need, at that time the purchaser or the buyer is not having idea about what exactly he or she is going to purchase. But as this need flows in this way, after need, first of all the individual or the person is in need, then it will get converted into product family, then product class, product line, product type, and individual product. If we will take the example, you will understand this better. मैं आपको अभी एग्जाम्पल के द्वारा ये एक्सप्लेन कर दूंगी, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा. अब हम एग्जाम्पल देखते हैं. देखो अभी यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है मोबाइल फ़ोन का. ये एग्जाम्पल है, अल्टीमेट आएगा. पहले किसी एक ए पर्सन की, द पर्सन ए इज़ हैविंग अ नीड ऑफ कम्युनिकेशन. उसे किसी से बातचीत करनी है, किसी से कम्युनिकेट करना है, या फिर इंफॉर्मेशन एक्सेस करना है, इंफॉर्मेशन का लेन देन करना है. तो दिस इज़ द नीड दैट कम्युनिकेशन. But he is not clear that he is going to purchase any particular phone, whether it is landline, mobile or anything. इसके बारे में उसको आइडिया नहीं है. The need is get converted into product family. Means he will search which will be the product which will satisfy his need. कौन कौन से प्रोडक्ट हो सकते हैं उसकी नीड सेटिस्फाई करेंगे. तो टेलीकम्युनिकेशन प्रोडक्ट्स ये इसमें आ जाते हैं. देन प्रोडक्ट क्लास. नाउ फॉर हिमसेल्फ ही विल थिंक दैट मोबाइल फ़ोन, दिस क्लास इज़ द बेस्ट. ये क्लास कैसे है, दिस वन बी द बेस्ट फॉर हिम ड्यू टू इट्स एडवांटेजेस और फीचर्स, वॉट एवर इट इज़. नाउ he has decided that he will purchase the mobile. Now what is the next step? Now product line. He will move towards the product line. Now in product line, he will understand that there are different kind of products. And smartphones. He will select the smartphone line. As he is clear with the, just a sec, I will take pen. As he is clear with the smartphone, now again he is having some requirement that he want Android smartphone. That means product type. Now he is clear about the product type, that is Android smartphone he wants. Then in Android smartphones he is having some options of brands A, B, C, D. In this way he is having options, and now he will select a specific brand out of it. For example, here Samsung is given. Samsung brand he will select, as he is having idea about this brand, how it is better or how it is competent as compared to other brands, or what are the benefits or what are the features of this brand.
and how it stands out in the as compared to other brands. Now last is SKU, stock keeping units. This is, now he is selecting the Samsung Galaxy S23, this particular product. Now he will reach to the पर्टिकुलर प्रोडक्ट. अभी ये एक किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट तक पहुंच जाएगा या फिर वो डिसीजन लेगा कि आई एम गोइंग टू परचेज दिस स्पेसिफिक प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट मैं परचेज करूँगा. तो दिस इज़ अबाउट द प्रोडक्ट हायरार्की, how the product is selected right from the need to the specific item or specific product. Now here we will see another example which you will understand. This is very easy example I mean to say. See, the first stage is need. The individual is having need. What is the need here? See, the transportation. The person want to move from one place to another place. उसको किसी गाड़ी के बारे में पता नहीं है और कैसे जाना है ये भी पता नहीं है उसको सिर्फ प्लेस X से प्लेस Y तक पहुंच जाना है, प्लेस Y तक, and that's why he need transportation. Suppose this is a 100 kilometers distance. So he want to move from this X to Y. Now product family. Now how he will move or what he will options he will having. He is having the option of automobile. किसी न किसी ऑटोमोबाइल की उसको हेल्प लेनी है. अभी पता नहीं है हमको कि कौन सा ऑटोमोबाइल होगा. वो 2 व्हीलर हो सकता है, 4 व्हीलर हो सकता है और 3 व्हीलर हो सकता है. किसी भी चीज़ के वो सहायता से ही वांट टू ट्रांसपोर्ट फ्रॉम X to Y. Now product class. He is going to select that product. It may be SUV होगा या फिर सेडन होगा. उसके पास अभी क्लास आ गया है कि दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स और दिस टाइप ऑफ ऑटोमोबाइल्स ही इज़ गोइंग टू यूज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन. नाउ प्रोडक्ट लाइन, ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स. अभी ये SUV उसने सेलेक्ट किया. SUV में उसको कौन सा सेलेक्ट करना है, SUV में कौन कौन से है प्रोडक्ट्स. तो ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स Hyundai SUV हमने लिए हैं, लेकिन देयर आर मेनी अदर प्रोडक्ट्स हु आर हैविंग लिस्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट्स. करेक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं. तो नाउ प्रोडक्ट टाइप, स्पेसिफिक प्रोडक्ट उसने सेलेक्ट किया है क्रेटा. एंड ब्रांड, द मैन्युफैक्चरर्स नेम, वॉट एवर द मैन्युफैक्चरर्स नेम that is he will come here, Creta. And the item Creta diesel annual. तो उन्होंने क्रेटा डीजल पर वो फाइनल डिसीजन लिया है उन्होंने, राइट. तो इन दिस वे द प्रोडक्ट हायरार्की गोज. आई होप यू हैव अंडरस्टूड विद दिस इजी एग्जाम्पल. प्रोडक्ट सिस्टम, product systems. What is the meaning of product systems? Group of diverse but related products work together to perform a function. A particular function perform करने के लिए क्या होता है, एक प्रोडक्ट्स का ग्रुप होता है, उसको हम सेट भी कहते हैं. उस सेट में अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, A, B, C, D, जो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं. तो दिस इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट सिस्टम्स. नाउ हियर स्मार्टफोन का एग्जांपल दिया गया है. स्मार्टफोन जब आप परचेस करते हो तो आपको उसके साथ क्या क्या मिलता है, एक हैंडसेट मिलता है, चार्जर मिलता है. आजकल किसी फ़ोन के पास किसी फ़ोन के साथ चार्जर नहीं मिलता, बट यूजुअली वी गेट इट. चार्जर, ईयरफोन्स होते हैं, कई बार ऐप्स भी होते हैं. तो दिस थिंग्स वी गेट विथ इट, सेट होता है. अनदर एग्जाम्पल वी विल टेक, इफ यू टेक
football or a volleyball, then you will get a set of pin जो उसमें आपको एयर फिल करनी है वो उसके साथ मिल जाता है. तो दैट पिन यू विल गेट विद इट. और if you take example of the makeup kit of girls, and they also get few things with the main product which is required for it. So this is the product systems, very easy to understand. अब हम हमारे ये लेक्चर के बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट में आ चुके हैं, दैट इज प्रोडक्ट मिक्स. नाउ व्हाट इज प्रोडक्ट मिक्स? द टोटल सेट ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफर्ड बाय कंपनी. नाउ अभी प्रोडक्ट मिक्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? यहाँ पे देखो आप, प्रोडक्ट विड्थ पे आ रही है, प्रोडक्ट लेंथ, डेप्थ, consistency. What are these terms? Width means number of product lines. Product lines, line A, line B, line C, line D. तो ये कितने लाइन्स है इसमें? दिस इज द विड्थ. ये विड्थ हो गई. आई विल एक्सप्लेन यू विद वन डायग्राम. हमारे पास एक चार्ट भी है उसका, उसके साथ भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. तब तक हम ये देखते हैं. लेंथ, टोटल एटम्स कितने हैं तो वो लेंथ में आ जाएगा. देन डेप्थ, वेरिएंट ऑफ ईच प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट में कितने सारे वेरिएंट्स हैं. कंसिस्टेंसी, रिलेटेडनेस ऑफ लाइंस, एक लाइन दूसरे लाइन के साथ कितना रिलेट करती है. यहाँ ए और बी, तो सपोज दिस इज़ द बाथिंग सोप एंड ये बी है बाथिंग जेल, तो इसमें रिलेशन है. ये एक दूसरे के साथ रिलेट करती है बिकॉज द प्रोडक्ट इज बाथिंग प्रोडक्ट इज सेम प्रोडक्ट. देन दिस इज द कंसिस्टेंट. Now see, here is the image, because this is very important, you should understand this. बहुत कई बार स्टूडेंट्स को इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन एक बार आप ये समझ लोगे ना तो इट विल बी वेरी इजी टू राइट इन द एग्जामिनेशन आल्सो. सी, इफ कंपनी इज देयर, कंपनी इज हैविंग प्रोडक्ट लाइन ए, प्रोडक्ट लाइन बी, प्रोडक्ट लाइन सी. अभी यहाँ पे कंपनी का एक प्रोडक्ट है, जैसे कि सोप है, बाथिंग सोप है, तो उसमें उनके पास 1 2 3 4 प्रोडक्ट्स हैं. तो ये अलग अलग लाइन से, उनके पास डिटर्जेंट है, उनके पास सपोज और दूसरा कोई टेल्कम पाउडर है और कोई प्रोडक्ट है. ठीक है. देन दीज आर द डिफरेंट लाइन्स. लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 4, 5. जैसे मैंने इसको बोला कि बाथिंग सोप है, तो ये लाइन नंबर 1 हो गई. ये शैम्पू है, लाइन नंबर 2 हो गई. ये जैसे हमने कहा, अभी दूसरा कोई एग्जांपल लेते हैं हम. शैम्पू है, बाथिंग सोप है, शैम्पू है, डिटर्जेंट है, ये कोई हैंड वॉश है, ये कोई हाउसकीपिंग मटेरियल का डेटॉल, फेनॉल जैसा क्लीनर है. तो दीज आर द डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड इन दैट दे आर हैविंग अगेन डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स. बाथिंग सोप में अलग अलग सोप रहेगा, एक प्रकार का रहेगा, ये दूसरे प्रकार का, करेक्ट, तीसरे प्रकार का. इसमें भी फिर उनके पास वैरायटीज रहने वाली है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4. तो ऐसा डिटेल में. तो दिस इज कॉल्ड एज अ प्रोडक्ट लाइन. ये प्रोडक्ट लाइन हो गई. यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है. ये हैंड वॉश का है, ये क्या है, क्लीनिंग मटेरियल है, फ्लोर क्लीनिंग मटेरियल.
तो इसमें भी उनके पास वैरायटी है। तो दीज आर द लाइन्स 1 2 3 4 5 आपको लाइन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ मैंने 3 निकाले हैं, ये आपको समझाने के लिए मैंने चौथी और पांचवी निकाली है यहाँ पे, फोर्थ एंड फिफ्थ। अभी देखो लाइन्स कितनी हैं, 1 2 3 4 5, तो इसको कहा जाता है विड्थ। विड्थ, प्रोडक्ट विड्थ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सपोज और किसी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्ट विड्थ, कंपनी प्रोडक्ट विड्थ है सिर्फ 3 ही उनकी प्रोडक्ट लाइन्स है, तो विड्थ सबसे ज़्यादा किसकी हो गई, विड्थ ये कंपनी की ज़्यादा हो गई, और ये कंपनी की विड्थ कैसी हो गई, कम हो गई, बिकॉज देयर आर ओनली 3 प्रोडक्ट लाइन्स एंड हियर आर 5। ओके, देन प्रोडक्ट विड्थ के बारे में आपको समझ में आ गया। अब हम लिखते हैं प्रोडक्ट डेप्थ। अभी प्रोडक्ट डेप्थ मीन्स हाउ मेनी प्रोडक्ट्स यू आर हैविंग इन वन प्रोडक्ट लाइन, दैट इज नथिंग बट प्रोडक्ट डेप्थ। एक प्रोडक्ट लाइन में सपोज हियर आर 1 2 3 4 प्रोडक्ट्स है, और यहाँ पे है सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स, यहाँ पे सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स हैं, तो ऑफ कोर्स इसकी डेप्थ कैसी है, कम है इनसे, क्योंकि सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट उन्होंने बनाए हैं, दे आर नॉट हैविंग द डेप्थ इन दैट। एंड नाउ व्हाट इज प्रोडक्ट लेंथ। ऐसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एक प्रोडक्ट है यहाँ पे, उसके बाद हमारे पास 3 वेरिएंट है, 4 वेरिएंट है, तो ये सब मिलके हमारे पास 20 प्रोडक्ट्स है। यहाँ पे इसके भी 30 प्रोडक्ट्स है, इसके 35 प्रोडक्ट्स है, इसके 40 प्रोडक्ट्स है, इसके 20 प्रोडक्ट्स है, तो कितने हो गए 20 30 35 40 20। दिस ऑल टुगेदर 20 प्लस 30 प्लस 35 प्लस 40 प्लस 20 is nothing but the product length. How many products the company is having, that is called as product length. Of course यहाँ पे 2 ये है, और यहाँ पे और ओनली 3 है, और यहाँ पे 2 है, तो प्रोडक्ट लेंथ भी दिस ऑर्गेनाइजेशन का ज़्यादा हो जाएगा इन कंपैरिजन विद दिस ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन के कंपैरिजन में। तो दिस इज़ अबाउट द प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट डेप्थ, प्रोडक्ट width and product length. Yes, one more thing I have to add here, product consistency. ये यहाँ पे नहीं है, but this is for your study. What is this consistency? अभी मैंने यहाँ पे बताया कि ये बाथिंग सोप है, शैम्पू है, करेक्ट, हैंड वॉश है, तो these all things are required, सिमिलर है, बाथिंग सोप है, शैम्पू है, तो these are the consistent product. These are the consistent product. यहाँ पे ऐसा नहीं है बाथिंग सोप है और यहाँ पे कुछ अलग प्रोडक्ट है, ईटेबल, जैसे कुरकुरे जैसा है, पैक्ड फूड, आई शुड कॉल इट एज ए पैक्ड फूड है। यहाँ बाथिंग सोप है, यहाँ पैक्ड फूड है, और हियर समथिंग डिफरेंट। Here suppose they are having some utensils production or chemical production they are having, तो ये क्या हो गया, there is no consistency then, they are having different products. If it is having bathing soap, shampoo, hand wash, this is the consistent, it's called as consistent. What is product analysis and why it is necessary? I will take pen here. What is product analysis? Product analysis involves studying. इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट एनालिसिस क्यों किया जाता है? सेल्स कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच प्रोडक्ट। प्रोडक्ट लाइन एनालिसिस इसलिए किया जाता है कि एक लाइन 1 में देयर आर सपोज 4 products,
there are 4 different products in line 1. Then how these products, whether there is profitability, whether their sales is high, how is the sales, that study is very important. See, sales contribution of each product, how much sales is there, profitability, ROI कितना है, return on investment, market growth, whether this product is growing or declining, customer preference, whether customers are preferring our product, competitive position, what is the position of our product in the world of competition or with the competitive other products, other A, B, C, D, other products, and our product is E. How much market share we are having, whether our product is competitive or not. This can be studied with the help of this product line analysis. And product line analysis is very important to check how our product is doing in the market. And the corrective action should be taken. Action should be taken. Suppose product is declining, or the sales of the product is declining as compared to previous year, then what action should be taken? That can be understood with the help of this product line analysis. Here it is given. This helps manager to understand which products are strong performer and which are weak. फिर से हमको यहाँ और प्रोडक्ट लाइन एनालिसिस के बारे में आइडिया मिलने वाली है. इट इवेल्युएट्स द परफॉर्मेंस ऑफ ईच प्रोडक्ट लाइन. वो हर एक प्रोडक्ट लाइन का परफॉर्मेंस क्या करता है, इवेल्युएट करता है. देन सेल्स एंड प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन. सेल्स एंड प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन टू अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट्स पोजिशन, how product is doing in the market. Then market profile and positioning. Identifies weak and strong products. And thus this product line analysis is one of the key way to understand the product's position in the market. अभी इसके पहले मैंने आपको चार्ट दिखाया था, तो उसमें हमने ये अभी स्टडी किया है. तो दैट अगेन आई विल टेल यू. डायमेंशंस ऑफ प्रोडक्ट मिक्स. अ प्रोडक्ट मिक्स हैज़ 4 डायमेंशंस. फर्स्ट इज प्रोडक्ट मिक्स विड्थ, number of different product lines a company offers. HUL Hindustan Unilever offers personal care, home care, food refreshment and health wellness. मैंने विड्थ के बारे में आपको बताया है कि अलग अलग प्रोडक्ट लाइंस है, तो जिसके ज़्यादा प्रोडक्ट लाइंस होंगे उसकी विड्थ ज़्यादा रहेगी. नो प्रोडक्ट मिक्स लेंथ. Product mix length means total number of items across all product lines. Total items जो भी हमारे पास कंपनी, यहाँ पे मैं फिर से आपको बताती हूँ, ये लाइन्स है. सपोज देयर आर 4 लाइन्स. कितने भी प्रोडक्ट हैं इसके अंदर, तो ऑल टुगेदर समेशन ऑफ ऑल दिस प्रोडक्ट्स इज नथिंग बट प्रोडक्ट मिक्स लेंथ. तो यहाँ पे फिर से हमने एग्जाम्पल लिया है. तो सपोज ऑल दिस प्रोडक्ट टुगेदर विल बिकम द लेंथ ऑफ दैट प्रोडक्ट मिक्स लेंथ. प्रोडक्ट मिक्स डेप्थ. नाउ सी हियर, product mix depth, the number of variants of each product. एक प्रोडक्ट के कितने अलग अलग वेरिएंट्स है, तो दैट इज नथिंग बट प्रोडक्ट मिक्स डेप्थ. यहाँ पे लक्स सोप का एग्जांपल लिया है हमने. लक्स सॉफ्ट टच, लक्स रोज, जास्मिन, सैंडलवुड, अलग अलग है. मोती सोप होगा आपके पास, मोती गुलाब, मोती चंदन, सैंडल.
और मोती जैसे कि यहाँ पे सैंडल है, और एक कोई उसका फ्रेगरेंस हो सकता है, तो दैट इज़ देयर, दैट इज अगेन। दूसरे भी टैल्कम पाउडर में, टैल्कम पाउडर उसमें भी फिर से सैंडल है, रोज़ है, जास्मिन है, तो ये अलग अलग आपको उसमें टाइप्स मिलेंगे, एंड दैट इज़ नथिंग बट द प्रोडक्ट मिक्स डेप्थ। Product mix consistency. How closely related the product lines are in terms of use, production and distribution channel. Soaps, shampoos, detergents, high consistency. अभी हमने एग्जाम्पल लिया था कि ये कंपनी है और उसके प्रोडक्ट लाइन्स है, ये है सोप, ये है शैम्पू, ये है डिटर्जेंट, ये है हैंड वॉश, तो दिस ऑल आर कंसिस्टेंस, मेल जोल रखते हैं एक दूसरे के साथ, अलग बिल्कुल डिफरेंट नहीं है, बट दे आर मैचिंग इन द सेम एरिया, एक एरिया में ही काम कर रहे हैं वो। If same company sells soaps plus laptops, low consistency. इसके पहले हमने एग्जाम्पल लिया था यूटेंसिल्स और केमिकल्स, ऐसा एग्जाम्पल्स हमने लिया था, तो देयर इज़ नो मच कंसिस्टेंसी। What is customer value hierarchy? That we will see here. Customer value hierarchy is again in the same way: core benefits, basic product, expected product, augmented product, and potential product. First of all, the customers, they will look for the core benefits, then they want the basic product, then they are expecting something, normal expectations those are. If they want some any additional benefits, then that is augmented, more than normal is augmented, and they want something different. Suppose a customer wants a car which is having the sensor that it should detect the alcoholic driver. This is something potential. Here is the example. हम यहाँ का एग्जाम्पल देख लेते हैं। अभी यहाँ टूथपेस्ट का एग्जाम्पल दिया है। कोर बेनिफिट क्या है किसी को? वो ओरल हाइजीन रखनी है, ही वांट टू क्लीन हिज माउथ, दैट इज़ द कोर बेनिफिट। बेसिक क्या है? टूथपेस्ट इन द ट्यूब, उसको टूथपेस्ट की ज़रूरत है। अभी हाइजीन रखने के लिए क्या चाहिए उसको? टूथपेस्ट चाहिए, बेसिक। अभी इसका शुरू हो जाता है एक एक। देखो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट वो क्या चाहता है? फ्रेश ब्रीथ, अभी बढ़ता जा रहा है, फ्रेश ब्रीथ चाहिए उसको। पहले तो सिर्फ ओरल हाइजीन इतना ही पता था, उसके बाद उसको टूथपेस्ट ये पता चल गया। अभी फ्रेश ब्रीथ, कैविटी प्रोटेक्शन एंड सेफ इंग्रेडिएंट्स। उसके बाद अब ये नॉर्मल कंडीशन पे, इसको हम नॉर्मल समझते हैं, दिस इज ओके सॉर्ट ऑफ। बट अभी हर्बल फार्मूला बोलता है वो, वाइटनिंग भी चाहिए और सेंसिटिविटी प्रोटेक्शन, and this is something exhaled. Now more than that, what is potential product? Customized toothpaste, smart oral care solution. इसको उसके जो भी टीथ का टाइप है, इसका जो भी टाइप है उसके अकॉर्डिंग, उसके टूथ के टाइप के अकॉर्डिंग उसको प्रोडक्ट चाहिए। ही वांट द प्रोडक्ट इन दैट वे, and the customer hierarchy is in this way, from core to basic, basic to expected, expected to augmented, augmented to potential product. Now here is another example for the same thing, that is customer value hierarchy.
customer value hierarchy. If somebody, some individual wants rest and sleep, then he will definitely looking. Suppose कोई person आया है दिल्ली से, he came from Delhi to Mumbai for the business purpose. Business. From morning 10 a.m. to 2 p.m. उसका काम हो जाता है, and he is having flight at 7 p.m. Then he want rest. Then he will definitely look for the room. Basic thing. Then what he expecting? He is expecting clean room with Wi-Fi. This is normal. अभी इससे ज़्यादा उसका बढ़ जाता है, मुझे फ्री ब्रेकफास्ट चाहिए और स्पा भी चाहिए. दिस इज़ एगमेंटेड. वाइल अभी वो सोच रहा है कि मुझे AI सर्विसेज चाहिए और स्मार्ट रूम चाहिए. एंड दिस इज़ द पोटेंशियल. एंड इन दिस वे customer value hierarchy flows from this core to potential. And I hope you must have understood all about this which I have explained. And in the end, do not forget to like, share and subscribe. Thank you very much.